Hello all, myself Deepak and welcome to my YouTube channel. So today we are starting our next topic, that is the logistic regression. So as usually we started with the same slides of the gate syllabus of DA that we have just covered about supervised learning. In our first lecture we have covered regression and the classification problem. We have covered simple linear regression. This is over lecture number 1. This is over lecture number 2. Lecture number 3 covers multiple linear regression, and lecture number 4 covers ridge and the lasso regression. And in this today unit, we proceed towards the lecture number 5, that is your logistic regression. Okay, so this is our lecture number 5, which is more towards the logistic regression. Okay. So lecture 1 supervised machine learning, lecture 2 linear regression, lecture number 3 is the multiple linear regression, lecture number 4 is the ridge and the lasso regression, and lecture number 5 today we are started with the logistic regression. अब सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिस्टिक रेग्रेशन है क्या, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी इसके अंदर. तो सर लॉजिस्टिक रेग्रेशन कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सी मशीन लर्निंग एल्गो है. और किस तरह की मशीन लर्निंग एल्गो? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गो. सो यूज फॉर क्लासिफिकेशन. सिंस रेग्रेशन कम हेयर, पर इट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. हमें ये चीजें अभी हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तब समझते जाएंगे कि सर ये जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है इसका नाम रेग्रेशन क्यों बोला जाता है, बल्कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को डील कर रही है. बट स्टिल राइट नाउ बस यू हैव टू कीप इन द माइंड दीज की टर्म्स दैट logistic regression is a type of supervised machine learning algo which is used for classification problem. So here you have the two major key points. One is it is a supervised machine learning algo. Second one is it is used for the classification problem. As it also mentioned here that it is not regression despite the name. You also have to keep in the mind. Next pointer, that it predicts the probability. In the logistic regression, the most important thing is that it predicts the probability. If you have certain amount, for example 0.78 will be there, so you need to find out the probability function of this particular thing. Okay, आपको probabilities के अंदर डील करना है, आपको क्लासेस के अंदर डील करना है, 0 और 1 क्लास के अंदर आपको डील करना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन, कैसा क्लासिफिकेशन मेनली डील करता है लॉजिस्टिक? दैट इज योर बाइनरी क्लासिफिकेशन. 0 एंड द 1 में क्लासिफिकेशन हो रहा है. किस तरह का क्लासिफिकेशन है सर? एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है. तो it predicts the probability that is a given input belongs to a particular class. You have to keep in the mind that logistic regression is a classification problem used for the classification problem, और जो given input है वो एक particular class से belong कर रहा होगा. Example, spam versus non spam, disease versus non disease patient. तो ये सारी चीजें जो है ये logistic regression के अंदर कवर होगी. The output is between 0 and the 1. तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो आउटपुट है वो एक बाइनरी आउटपुट होएगा, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 होएगा. यूजुअली द सिग्मॉइड फंक्शन. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज द सिग्मॉइड फंक्शन. तो ये जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है इसके जितने भी आउटपुट है वो यूजिंग 0 एंड द 1 जो आ रहा है उसका बाइनरी आउटपुट, वो किस फंक्शन आ रहा होगा? ओके, यूजिंग द सिग्मॉइड फंक्शन. अब सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है ये अभी हम आने वाली स्लाइड्स में सारी चीजें इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. इवन लॉजिस्टिक रेग्रेशन का नाम लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्यों रखा गया वो भी हम अभी आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सो व्हाई नॉट लीनियर रेग्रेशन फॉर क्लासिफिकेशन? सर क्यों नहीं लीनियर रेग्रेशन हम यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रेग्रेशन की क्यों नीड पड़ रही है? सबसे फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट linear regression output is continuous value which are not restricted to the 0 and the 1. Second, logistic regression maps predictions into the probability range from 0 to 1. So इसके जितने भी predictions होंगे वो range करेंगे कहां से कहां तक? 0 और 1 के बीच में, जो यूज कर रहे होंगे सिग्मॉइड फंक्शन को. तो अभी तक जितनी भी हमने स्लाइड्स देखी उनसे हमने ये तीन चीजें पता कर ली. सर ये किस तरीके की लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो है, जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है वो किस तरीके की एल्गो है? सर एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. आई होप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है ये आपने
प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गो है सर। सेकंड थिंग, इसके जो आउटपुट्स होंगे वो मेनली प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। किस तरीके से? बाइनरी 0 एंड द 1 या 0 और 1 हम बोले। एंड थर्ड वन इज द इट मेनली आउटपुट 0 एंड 1 कम्स बाय यूजिंग द सिग्मॉइड फंक्शन। ओके, तो हमें दो तीन चीज पता चल रही है। एक तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, ये हमें आगे डिटेल में डिस्कस करना है। लॉजिस्टिक के अंदर लॉजिस्टिक क्यों लिखा जा रहा है वो हमें आगे स्लाइड्स में डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो है वो दो मेजर चीजों में टूट रहा है, एक तो लॉजिस्टिक, एक रेग्रेशन। अब हम वन बाय वन करके लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सर लॉजिस्टिक क्या है और रेग्रेशन क्या है, ठीक है। इवन आपको पता है ऑलरेडी रेग्रेशन होता क्या है, लेकिन सेंस ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है बट स्टिल इसका नाम रेग्रेशन है, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव एडेड 2-3 स्लाइड्स हियर रिगार्डिंग द रेग्रेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लॉजिस्टिक मीन्स, सो लॉजिस्टिक का क्या मतलब है एग्जैक्टली? सो हमें सबसे पहले लॉजिस्टिक फंक्शन समझना चाहिए। आपकी लेट 11th एंड 12th में भी इवन आपने लॉजिस्टिक फंक्शन पढ़ा होगा। तो लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ z 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस z। हमें यह चीज ध्यान रखनी है, जो आपका लॉजिस्टिक फंक्शन है वो क्या है? 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस z, जो क्या है z का एक z के ऊपर डिपेंड करेगा। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन z। इट इज एन शेप एस शेप कर्व। ओके, जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन का ग्राफ बनेगा वो कैसा होता है सर? बेसिकली एस शेप कर्व बनता है। तो इस तरीके का कुछ कर्व बनेगा। ओके, सो ये जो कर्व बन रहा है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो इस तरीके के कर्व्स जो होते हैं वो बेसिकली एस शेप्ड कर्व कहलाते हैं। क्लियर? सो लॉजिस्टिक रेग्रेशन हमने देख लिया, एस शेप कर्व बना रहा है। दैट मींस मैप एनी रियल नंबर टू द वैल्यू बिटवीन 0 एंड द 1। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हुई उसको कवर आउट कर देगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द लॉजिस्टिक रेग्रेशन, वी यूज दिस फंक्शन टू मॉडल प्रोबेबिलिटीज of outcomes. Example, probability of the disease, whether in a person probability of occurring a disease is possible or not, उसको predict करने के लिए। probability of the spanmans, उसको डिटेक्ट करने के लिए। इन सब जगह हम क्या यूज करने वाले हैं सर? लॉजिस्टिक रेग्रेशन को। क्लियर? तो लॉजिस्टिक रेग्रेशन में लॉजिस्टिक जो है वो बेसिकली क्या है? सबसे पहला पॉइंटर हमें याद रखना है लॉजिस्टिक फंक्शन के लिए, फिर हम डिफाइन करते हैं कि लॉजिस्टिक इसको और इन डिटेल क्यों बोला जाता है। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, अब लॉजिस्टिक सर ये दिस इज अ एस कर्व जो भी हमने डिस्कस किया है, फंक्शन एफ एक्स। ए जो है वो बता रहा है लॉजिस्टिक कर्व के बारे में। बी ये जो होता है सर, दिस डैश लाइन इज नोन एज द लिमिटिंग कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय एल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यू नॉट नीड टू लर्न, बस यू हैव टू जस्ट दिस स्लाइड इज एडेड to tell you about that what is an S curve and what is a logistic function curve. Okay, this is again a sigmoid function. So sigmoid function is also the same, that is 1 upon e raised to the power minus x. If f of x will be there, then it is 1 upon 1 plus e raised to the power minus x. So this function is also known as a sigmoid function. ये आपने क्लास 11th एंड 12th में कवर कर रखा है। फर्स्ट ईयर के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आपने ये चीज कवर कर रखी होगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने एक नेम हाईलाइट किया लॉजिस्टिक। ओके, सो व्हाई द नेम लॉजिस्टिक रेग्रेशन? देखो, अगर आपने ये समझ लिया लॉजिस्टिक रेग्रेशन को लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्यों बोला जाता है, तो आपको डिटेल मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर लॉजिस्टिक रेग्रेशन आपको इंटरव्यूज में, आपको गेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार इसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बेसिक क्रक्स समझ लिया कि सर लॉजिस्टिक क्यों यूज हो रहा है, रेग्रेशन क्यों है, और उसको बस रिकॉल कर दिया आपने एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आप फटाफट गेन कर जाओगे उस चीज में। ठीक है, तो हमने देखा सर लॉजिस्टिक, तो मेरा मेन फोकस यही है कि आप इनकी बेसलाइन समझ लो सबकी। ठीक, कि सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो आपको रटना ना पड़े, चीजें समझते हुए आप आगे गए। तो हमने देखा सर लॉजिस्टिक रेग्रेशन बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट आपने लॉजिस्टिक फंक्शन देख लिया सर क्या होता है, 1 upon 1 plus e raised to power minus x. This is your logistic or the sigmoid function. So it transform linear regression output
विच इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सर लीनियर एग्रीशन के जो भी आउटपुट थे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, उन सबको इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्रोबेबिलिटी रेंज ऑफ 0 1 0 1 और द 0 1। ये 3 बार लिखने आ गया है अल्टीमेटली ये केवल 0 1। इज दैट क्लियर? Next point, most important point, although both the points are important, but this is also most important because here a new term add, that is log odds. Okay, so log odds relationship. What log odds relationship? पहले तो हमें समझना पड़ेगा odds क्या होता है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है तो odd का मतलब है सर p डिवाइड बाय 1 माइनस p, जहां पे p क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या करा, इस ऑड का लॉग ले लिया। अगर मैं इस ऑड का लॉग ले लेता हूं, दैट मींस अगर मैं यहां पे लॉग लिख देता हूं तो ये लॉग ऑड बन जाएगा, और यहां पे मैंने फंक्शन में लॉग लगा दिया तो ये जो क्वांटिटी बनी ये लॉग ऑड कहलाती है। दिस इज नोन एज लॉग ऑड। और इसका ये आपने देखा होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन के बराबर अगर हम इसको पुट कर दें तो ये लॉग ऑड रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स द लॉग ऑड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द फीचर्स। सो ये हमारे पास बीटा 1 बीटा नॉट बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा n, ये सारे क्या थे सर, फीचर्स के साथ इक्वेशन थी आपके पास लीनियर इक्वेशन की। तो लॉग ऑड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एज अ लीनियर फंक्शन, लॉग ऑड्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एज अ लीनियर फंक्शन, हमारे पास यहां क्या मिल रहा है सर, एक लीनियर फंक्शन मिल रहा है। ये हमने लीनियर रेग्रेशन में भी कवर करा हुआ है, मल्टीपल लीनियर regression की इक्वेशन थी, सिंपल लीनियर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 ओनली, बट व्हेन यू हैव मोर देन वन dependent or independent variables, then we can go with the beta naught plus beta 1 x1 plus beta naught beta 2 x2 dot 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 beta n xn। तो जब log odds लीनियर इक्वेशन के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाए, दैट इज नोन एज अ लॉग ऑड रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट, so the logistic part emphasize that we are not predicting continuous values। लीनियर एग्रेशन क्या कर रहा था सर, कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा था, बट यूजिंग द लॉजिस्टिक कर्व ऑफ मॉडल क्लासिफिकेशन, ये क्या कर रहा है, लॉजिस्टिक कर्व को यूज करते हुए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। देखिए ये वैसे लॉजिस्टिक रेग्रेशन है, वो रेग्रेशन एक तो पार्ट साइड में कर दें। हम पता है दो तरीके की हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग में चीजें देखी थी, वन इज द क्लासिफिकेशन, दूसरा रेग्रेशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये चीज आराम से समझाई थी कि रेग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब जो लीनियर रेग्रेशन था वो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम सेट कर रहा था, उसी तरीके से लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सेट कर रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सेट तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूस नहीं दे रहा, इसका जो आउटपुट्स आ रहे होंगे वो लॉजिस्टिक कर्व के आउटपुट्स आ रहे होंगे, यानी 0 और 1 की वैल्यूज आ रही होगी। क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से पॉइंटर्स रिपीट कर रहे हैं हम कि सर बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक फंक्शन इट ट्रांसफॉर्म लीनियर रेग्रेशन आउटपुट इनटू द प्रोबेबिलिटी रेंज। ये 0 से 1 क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी रेंज है। आपने 9 10th में पढ़ा है सर, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, या तो होएगा या नहीं होएगा, 0.5 होगा, 1 से ऊपर नहीं हो सकती कभी भी प्रोबेबिलिटी, वो रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाती है। दूसरा लॉग ऑड्स रिलेशनशिप, दैट इज लॉजिस्टिक रेग्रेशन प्रिडिक्ट द लॉग ऑड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द फीचर, लॉग ऑड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द फीचर्स, इसलिए सर इसको हम लॉजिस्टिक रेग्रेशन बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक कि सर लॉजिस्टिक क्या है। सबसे पहला एक तो लॉग फंक्शन यूज कर रहा है, सिग्मॉइड फंक्शन जो एक तरीके से लॉग और सिग्मॉइड फंक्शन ये यूज कर रहा है। ये जो लॉग है लॉजिक, अभी हम पढ़ेंगे लॉजिक क्या होता है, तो उसी तरीके से सर सिग्मॉइड फंक्शन का यूज हो रहा है। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करा गया है, इसके जितने भी आउटपुट्स है वो रेंज करेंगे 0 से 1 के बीच में, लॉग ऑड्स रिलेशनशिप डेवलप करेगा, दैट इज मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन या लीनियर रेग्रेशन, सिंपल लीनियर रेग्रेशन को log ऑफ p डिवाइड बाय 1 माइनस p के बराबर रख देगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लॉजिस्टिक। इज दैट क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल एनालॉगी क्या है सर, सिंपल सी बात है, नेम लॉजिस्टिक रेग्रेशन comes from the logistic, that means sigmoid function, which is used to convert a linear combination of features into the probability between 0 and the 1। हमने देखा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर था,
बीटा नॉट बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 बीटा एन xn को उसने प्रोबेबिलिस्टिक रेग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। नाउ अब आता है रेग्रेशन। लॉजिस्टिक तो हम समझ गए सर, लॉजिस्टिक क्या है। आती है बात रेग्रेशन की। तो रेग्रेशन क्यों बोला जाता है? बेस्ड ऑन द रेग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि आप इसमें एक तरीके से रेग्रेशन इक्वेशन यूज कर रहे होगे। दैट इज लॉजिस्टिक रेग्रेशन इज बिल्ड ऑन सम आइडिया एज लीनियर रेग्रेशन, दैट्स व्हाई इसको रेग्रेशन बोल दिया जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फीचर्स, आप देख रहे हो ये आपने सेकंड लेक्चर्स में पूरी पढ़ी है, थर्ड लेक्चर में भी आपने इक्वेशन को पढ़ा है। इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग z directly, logistic regression passes it through the logistic or the sigmoid function to get the probability। डायरेक्टली प्रिडिक्ट करने की बजाय वो उस पर्टिकुलर अपने प्रिडिक्शन को लॉग और सिग्मॉइड फंक्शन में से पास करके प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाएगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके आंसर आ रहे होंगे। क्लियर? ओके, रेग्रेशन ऑफ ऑन लॉगऑड्स। तो सो लॉजिस्टिक रेग्रेशन एक्चुअली परफॉर्म्स रेग्रेशन ऑन द लॉग ऑड्स। दैट इज आपने देखा होगा ये लॉग ऑड्स है, दिस इज अ लॉग, ये ऑड का फॉर्मूला है, तो ऑड्स विल बी p डिवाइड बाय 1 माइनस p, और ये जो है रेग्रेशन के फॉर्मूला। सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लॉजिस्टिक रेग्रेशन। सो इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज रेग्रेशन। तो अभी तक हमें इतनी कहानी समझ में आ चुकी है कि सर लॉजिस्टिक रेग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कि सर एक तो ये सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहा है, आउटपुट कंटीन्यूअस ना देने की बजाय ये सिग्मॉइड फंक्शन से पास करा के आपको आउटपुट दे रहा होगा। प्रोबेबिलिस्टिक चीजें पिक्चर में है, प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी चीज आएगी उसको हम प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में देखेंगे कि डिजीज हो रही है, तो 1000 लोगों में से 20 लोगों में डिजीज मिलता है, आदमी डिजीज पर्सन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी होने की और नहीं होने की, और फिर प्रिडिक्शन किया जा रहा है। दूसरा रेग्रेशन, क्योंकि सर लीनियर रेग्रेशन या मल्टी लीनियर रेग्रेशन को लॉग ऑड्स के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, यानी सर बी नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 बीटा एन xn को ये किससे कंपेयर कर रहा है? लॉग ऑफ p डिवाइड बाय 1 माइनस p। क्लियर? तो ये इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लॉजिस्टिक रेग्रेशन। यही की पॉइंटर्स होते हैं लॉजिस्टिक रेग्रेशन में, मेनली तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है लॉजिस्टिक रेग्रेशन। एक तो बस फॉर्मूला सिग्मॉइड फंक्शन का, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस e raised to power माइनस z, और दूसरा आ गया सर ये वाला लॉग ऑड्स का फॉर्मूला जो आपको रिमेंबर रखना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक, बिकॉज इट इज यूज सिग्मॉइड फंक्शन और द लॉजिस्टिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड रेग्रेशन बिकॉज इट मॉडल्स अ कंटिन्यूअस रिलेशनशिप between features and the log odds of the outcome just like regression analysis। क्लियर? ये हमने चीजें पढ़ ली है। लॉग ऑफ ऑड्स को एक बार और डिटेल में देख लेते हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो। ऑड्स, सिंस वी ऑलरेडी नो, इफ एन इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी p, अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो इसके ऑड्स कैसे लिखे जाएंगे? p डिवाइड बाय 1 ओवर p। एग्जांपल, अगर प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.8, तो 1 माइनस 0.8 क्या आ जाएगा? 1 माइनस p क्या आ जाएगा? 0.2। ओके, तो 0.8 माइनस कर देंगे 0.2, इन दोनों का रेशियो, दैट मींस 0.8 डिवाइड बाय 0.2, दैट कम्स आउट टू बी 4। ये इसका ऑड्स है। इसका मतलब क्या हुआ जनरल टर्म में? 4 to 1 इन फेवर। ओके, 4 to 1 जो होएगा हमारे पास वो फेवर में होएगा, दैट्स इट। क्लियर? ये ऑड्स का मतलब होता है। देन लॉग ऑड्स, जिसे इन शॉर्ट लॉगेट भी बोला जाता है। तो log odds is simply the natural log of the odds, that is you are just finding odd log of this odd। जो भी आपके पास log आ रहा है उसका आप odd ले लेंगे जो भी odd है उसका log ले लेंगे आप, तो that's why it is known as log odd। तो फॉर एग्जांपल पिछली बार हमारे पास odds आया 4, उसका आप log ले लोगे तो वो log odd बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉजिट फंक्शन, रिटर्न logit p। ओके, Why it's matter especially in logistic regression, ये जो फंक्शन है स्पेशली मैटर क्यों कर रहा है? क्योंकि सर ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं पॉइंटर के अंदर। ओके, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रेग्रेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए सर टाइप्स। दैट इज बाइनरी लॉजिस्टिक रेग्रेशन, अगर दो क्लासेस में क्लासिफिकेशन हो रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, स्पैन है, नॉन स्पैन, मेल है,
तो उसमें अपन क्या करते हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रेग्रेशन मानते हैं। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रेग्रेशन, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रेग्रेशन, तो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्या है, मोर देन टू क्लासेस विदाउट एनी ऑर्डर। ओके, एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग फ्रूट टाइप्स, दैट इज एप्पल, बनाना, ये बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रेग्रेशन। बाइनरी में केवल दो ही क्लास बन रही है, मल्टीनोमियल में हमारे पास दो से ज्यादा क्लासेस बन रही है। ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रेग्रेशन, अगर ऑर्डर्ड है, देखो मल्टीनोमियल में क्या था, विदाउट एनी ऑर्डर, मल्टीनोमियल में हमारे पास किस तरीके की कहानी थी, विदाउट एनी ऑर्डर। वहीं सर अगर ऑर्डर आ जाए कैटेगरीज के अंदर, देन इट इज नोन एज ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रेग्रेशन। एग्जांपल देखें, रेटिंग्स, पुअर, एवरेज और द गुड के बीच में हम रेटिंग कर रहे हैं, दैट इज ओके। तो ये तीन तरीके के और भी होता है, बट हमें मेजरली ये तीन होता है, दैट इज बाइनरी लॉजिस्टिक रेग्रेशन, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रेग्रेशन एंड द ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रेग्रेशन। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, अभी हमने सिंस बैंडविड्थ हमारे पास वीडियोस को हमें 30 और ज़्यादा मिनट्स पे नहीं ले जाना है, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं करा है। अदरवाइज अब जब भी आप लॉजिस्टिक रेग्रेशन पढ़ें तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लें, व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC कर्व। बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आता होगा, जिनको नहीं आता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास, वो हम डाल देंगे आपके यूट्यूब पे, सो दैट आपको सारे के सारे इन चीज़ों के लिए भी आइडिया पता चल जाए कि सर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, एक्यूरेसी कैसे फाइंड होती है, प्रिसीजन, इनके फॉर्मुलेस क्या होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव्स, और वो सब मिला के आरओसी एओसी कर्व क्या होता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे आने वाले एक कुछ वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में। सिंस ओवर मेन फोकस इज टुवर्ड्स द लॉजिस्टिक रेग्रेशन, इसलिए हम डेविएट नहीं हो रहे हैं हमारे मेन पाथ से। देन आता है वन लाइनर रिवीजन, अगर मैंने कुछ ऐड करें यहाँ पे, दैट इज लॉजिस्टिक रेग्रेशन क्लासिफिकेशन एल्गो है। सबसे पहला पॉइंटर आपको रट के रखना है, यूज सिग्मॉइड टू मैप प्रिडिक्शंस इनटू 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में प्रिडिक्शन करने के काम आएगा। मॉडल लॉगॉट्स इज लीनियरली, यूज क्रॉस एंट्रोपी लॉस फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी क्रॉस एंट्रोपी लॉस हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में, तब आप समझ जाएंगे सर क्रॉस एंट्रोपी लॉस होता क्या है और ऑप्टिमाइजेशन में उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जिसको पता है देन वेल एंड गुड, वो सीधे डायरेक्टली समझ चुका होगा। देन वर्क्स बेस्ट फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड लीनियरली सेपरेबल डेटा, जहां पे बाइनरी क्लासिफिकेशन और लीनियरली सेपरेबल डेटा है वहां पे बहुत अच्छा ही वर्क करता है। Then there is a simple example of predicting the diabetes, that doctor wants to predict whether a patient has diabetic or not. So answer will be in the yes or the no basis. So there are certain parameters, that is your age, your BMI, your family. तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, y is equal to the b नॉट प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एज, एक आपके पास ये हो गया, x1 की जगह एज आ गया। उसी तरीके से बीटा 2 मल्टीप्लाई बाय BMI, x2 की जगह हम BMI डाल सकते हैं। ये होते क्या थे सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही ना, तो ये एज हो गया, BMI हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलके एक डिपेंडेंट वेरिएबल y बनता था आपके पास, बीटा 3 इज फॉर फैमिली। तो ऐसे ही पूरी इक्वेशन इसने बना ली। अब इस इक्वेशन को वो सॉल्व करने जाएगा, किसके बराबर पुट करेगा, प्रोबेबिलिटी के बराबर, उसका लॉग लेगा p डिवाइड बाय 1 माइनस p, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी पेशेंट्स की डायबिटिक होने की डिवाइड बाय 1 माइनस p नहीं होने की, तो वो प्रोबेबिलिटी का लॉग लेके इसके बराबर पुट करेगा और फिर चीजें सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे अपन लॉजिस्टिक रेग्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं, उससे हमारे पास और एक्यूरेट आंसर आते हैं। दैट इज डॉक्टर वांट्स प्रिडिक्ट द पेशेंट वेदर इट इज अ diabetic or not based on these three factors, that is your age, BMI and the family. So logistic regression is used because the outcome is binary. आपका जो outcome कैसा है, binary है। It gives the probability that a patient has diabetic and based on the threshold, हमें एक threshold सेट करना पड़ता है इसके अंदर कि उस थ्रेशोल्ड से नीचे वाले जितनी भी चीजें होगी वो हम नेगेटिव मानेंगे यानी 0 मानेंगे, और उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी हम पॉजिटिव या फिर 1 मानेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए थ्रेशोल्ड सेट कर दिया 0.5, सो बोल देंगे सर उससे ऊपर वाले जितने भी पेशेंट है, 0.5 से ऊपर आने वाले डायबिटिक है, उससे नीचे जितने भी हैं वो सारे नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। ये तो बस हमने नॉर्मली लगाया कि ये जो आती है ब्लड शुगर मेजरमेंट, अगर 130 126 प्लस है तो वो डायबिटिक पेशेंट माना जाता है। ऑल दो इसको क्वेश्चन से ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, बस एक थोड़ा सा एग्जांपल। Now we start a very good question on the logistic regression. So here we have certain data set, that is hours of study we have given, that is 1 hour, 2 hour, 3, 4, 5 and the 6 hours will be given, and based on that
whether a student will be pass or not in that particular examination will be written in this column y. So सबसे पहले हमें करना क्या होगा सर, बेसिक इक्वेशन जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, that is y is equal to the, this is nothing but b naught plus beta 1 x will be given. क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग आपको दे रखी है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू. ओके, threshold value we have given, that is approximately 0.5 we can consider. Okay, it is already given in the question. Okay, so हमारे पास आ चुका है beta naught, that is -1, and beta 1 will be the 1. So based on this we can write the equation y is equal to the beta naught will be equal to -1, then plus we have in this we can write beta 1 is this the 1 and the x will be there. Okay, so the equation will be converted to -1 plus x which is nothing but equal to the 5. तो अगर मान लीजिए हमारे पास, हम अब एक चीज उठा रहे हैं, एक जनरल चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर द 5 आवर्स, ओके, हम मॉडल से पूछना चाह रहे हैं कि क्या 5 आवर्स पढ़ने पे बच्चा पास होएगा या नहीं होएगा. तो हम यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज -4 plus 5 which is equal to the 1. We get here 1 we will get. So the value of y we will get is equal to the 1. Now by the sigmoid function, क्या हम ये जानते हैं हमारे पास जो सिग्मा z होएगा या सिग्मा y, क्योंकि हमने यहाँ y वेरिएबल लिया है, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस y चलेगा. That comes out to be 1 divided by 1 plus e raised to power -1. So it comes out to be something 1 upon 1 plus e raised to power -1 value you can write, and it comes out to be 0.799 approximately. Okay. So अगर मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूं हमारे थ्रेशोल्ड से, so थ्रेशोल्ड तो है 0.5 और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 0.799 फॉर x is equal to the 5. तो हम ये चीज समझ सकते हैं, अगर आपके पास x 5 है यानी बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, यानी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया 0.7, दैट कम्स आउट टू बी यस, हम इसको बोल देंगे कि बच्चा पास हो जाएगा. ऐसे आप 6 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो. ऐसे अगर आपको प्रेडिक्शन बोल दिया जाए 7 के लिए, तो 7 के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो बाय द थ्रू दिस लॉजिस्टिक रेग्रेशन वी कैन फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी पास इन द एग्जामिनेशन और नॉट. ओके, तो हमने एक प्रेडिक्शन मॉडल लॉजिस्टिक रेग्रेशन के थ्रू भी बना दिया. दैट्स इट. तो ये एक बेसिक सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें मिल चुका है. आगे चलें तो ये कुछ कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे. तो इंटरप्रिटेशन हुआ क्या इससे? सो लॉजिस्टिक रेग्रेशन टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, नॉट जस्ट यस एंड द जीरो. इफ आवर्स ऑफ स्टडी इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग आल्सो इंक्रीजेस. यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज मैंने कैलकुलेट कर ली, तो यू फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. प्रोबेबिलिटी पता ना कैसे निकालेंगे सर? p डिवाइड बाय 1 माइनस p, ये वाला फॉर्मूला लॉगऑट्स का फॉर्मूला लगा के और क्रॉस चेक कर सकते हो चीजें. तो प्रोबेबिलिटीज हमने देखी 2 आवर्स के लिए 12% चांस, 4 आवर्स के लिए 50% चांस, 6 आवर्स के लिए 88% चांस. पीछे जाएं, हमने 5 आवर्स के लिए निकाली है, तो 5 आवर्स के लिए आप देखेंगे आपके पास 79% ऑफ चांस विल गेट to get a student will be passed in the examination. So 7.79 will convert into, when multiplied by the 100, will be equal to the 79%, approximately 79.9%. तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास जो अगर 5 आवर्स की भी बात करी जाए, so for the 5 hours we found it is 79%. Okay, that's it. बाकी this is the homework question for you. You can just do this problem in your homework and write your answer in the comment box. Okay, so that's it. Okay, so that's it from my side. Thank you so much. Have a nice day. Take care, students.